یہاں پر بیٹھے اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر موجود ان تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان بھائیوں کو، ان بیٹوں کو جو بلوچستان میں ایک ظلم، جبر اور خوف کی سائے کے تلے بھی انہوں نے اس جد و جہد کو جاری رکھا اور ایک ایسی تاریخ رقم کر دی۔ وہ خواتین، وہ عورتیں جن کو اس ریجن میں کہتے ہیں کہ یہاں کے خواتین اپنے مردوں کے ہاتھوں ان کی استحصال ہو رہی ہے، لیکن میرے لیے بحیثیت بلوچ یہ ایک فخر کی بات ہے، ایک فخریہ بات کہ میری مائیں، میری بہنیں آج بلوچستان سے اپنا مقدمہ لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر آئی ہیں اور وہ اپنے پیاروں کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری ایک ایسی لمبی درد اور تکلیف کی داستان ہے، چاہے اسلام آباد کی سڑکیں ہوں، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، کوئی ایسا شہر، گاؤں، کہیں پر ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو ہمارے اس جبر اور تکلیف سے ناواقف ہو، اور میرے والد سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کی جبری گمشدگی کے اس المیے سے واقف نہ ہو۔ جس طرح سائرہ نے ذکر کیا کہ 14 سالوں سے ایک بیٹی احتجاج کر رہی ہے، تو میں کہنا چاہوں گی کہ 14 سال کہنے کو تو صرف 2 لفظ ہیں، لیکن ایک بیٹی، ایک ماں، ایک بھائی اور بہن کے لیے، والد یا اپنے پیاروں کی ایک دید کے لیے 1 دہائی سے زیادہ انتظار صدیوں سے کم نہیں ہے۔ آج میری طرح بلوچستان کی ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں انیسہ اور امبر درد اور اذیت کے انتظار کے دن گزار رہے ہیں، جن کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جنگ زدہ بلوچستان کی بیٹیوں کا درد مشترک ہے، اور اس درد کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس درد سے آشنا ہیں۔ بلوچستان میں ایسے گھر بہت کم ہوں گے جن کے لوگ اس درد سے آشنا نہ ہوں۔ ایک شخص کی جبری گمشدگی پورے خاندان اور اس سماج کے لیے اجتماعی تکلیف کا باعث ہے۔ بلوچستان جبر و ناانصافی کے داستانوں سے بھری پڑی ہے، اور جبری گمشدگیوں کی افریت نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں احتجاج و پریس کلبوں کی نظر کر دی۔ بلوچستان کے جن بچوں کو والد کی شفقت کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، ان کا بچپن والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر آواز اٹھانے میں گزر گئی۔ والدین کو بیٹے کے سہارے بننا چاہیے تھا، وہ والدین سڑکوں پر اپنا زیادہ تر وقت احتجاجوں پر اور پریس کلبوں کے سامنے گزار رہے ہیں۔ جن لڑکیوں کو کالج اور یونیورسٹیز کے کلاسز میں وقت گزارنا تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے بھائیوں کی بازیابی کے لیے پریس کلبوں کے سامنے گزار رہی ہیں۔ بلوچ ماؤں کی زندگیاں 1 دہائی سے جبری گمشدہ بیٹے کے لیے انتظار کی گھڑیاں کتنے گزر رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ بلوچستان نامی بڑے کینوس میں جبری گمشدگی اور اجتماعی سزا سے متاثر لوگوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس بڑے کینوس میں ہزاروں داستاں ہیں جو بلوچستان میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور وہ صرف وہ داستان آپ تک پہنچتے ہیں جو اسلام آباد اور شال آنے میں کامیاب ہوئے، وہ کہانیاں جو کیمرے کی کلک سے محفوظ ہو چکے ہیں یا کہانی کار کے قلم نے نقش کیے ہیں۔ بلوچستان میں ایسے ہزاروں داستان ہیں جن کو ابھی تک زبان بھی نہیں ملی۔ ہمارا درد دنیا کے ان قوموں سے مشترک ہے جو جبری گمشدگی کے افریت سے گزر رہے ہیں۔ جافنا کے تعاملوں کی انکہی داستان ہو یا ارجنٹائن کے ماؤں کا درد، بلوچوں کی طرح جابر کے خلاف جد و جہد کرنے والے قوموں کا درد
मुश्तरक है। जाफना में हजारों तामिल जबरी गुमशुदगी के शिकार हुए और बलूचिस्तान बलोच जहां जिंदगी से भरपूर इंसानों की जगह कहानियों ने ले ली। अली असगर बंगुलजई की जबरी गुमशुदगी को 20 साल से ज्यादा अरसा मुकम्मल हो चुका है। उनके नवासे बड़े हो चुके हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगी के दर्द से आज भी उनका खानदान नबर्द आजमाया है। समी बलोच के वालिद ने 11 साल उसका इंतजार और उस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए, लेकिन उन्हें जिंदगी में दोबारा अपने बेटे का दीदार ना नसीब हो सका। रियासती जबर जिसे हम नसीब के पर्दे में लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन रियासती जबर पूरे बलूचिस्तान में अयान है। डॉक्टर अकबर मरी का बेटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में कैनूस पर रंग बखेरता है, लेकिन 14 सालों से इसकी जिंदगी का कैनूस रंगों से खाली है। अली हैदर ने अपने बचपन के 14 साल प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज में गुजार दिए और उसकी छोटी बहन आज भी एहतजाज में हमारे साथ है, लेकिन वालिद के लिए इनका इंतजार खत्म न हो सका। मैं और महिला 15 साल से अपने वालिद डॉक्टर दीनजान की एक मुस्कुराहट के इंतजार में बैठे हैं और हमारी तरह सैकड़ों बच्चे अब प्रेस क्लबों और एहतजाजों में जवान हो रहे हैं। सीमा की शारुल जिसने आंख खोलते ही प्रेस क्लब के एहतजाज ही देखे हैं। 14 साल से जबरी गुमशुदगी के खिलाफ तहरीक जारी है। मैंने इस दुनिया से रूबरू होना इसी जद्दोजहद में सीखा। मेरी परवरिश इन्हें एहतजाजों में हुई। इन्हीं 14 सालों में हमने पाकिस्तान में हर इंसाफ का हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इसमें हमें हर तरफ मायूसी मिली। पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पार्टी के कायदीन से हम मिले हैं और उन्होंने हमें जबरी गुमशुदगी के खात्मे और हमारे प्यारों की बाजियाबी की यकीन दहानियां की हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होकर नून लीग के इक्तदार पर विराजमान हुआ। तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का नारा बुलंद किया, लेकिन बलोच कौम और जबरी गुमशुदगी के अफराद के खानदानों पाकिस्तान की अदालतों और कमीशनों के हजारों चक्कर लगाए, लेकिन हमें इंसाफ देने के बजाय हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई और अदालतों के अहकामात पर पाकिस्तान के मुक्तदिर कुव्वतें आग करने पर 14 सालों में हमने एहतजाज के हर वो जरा इस्तेमाल किए जिससे हमारी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों में और पाकिस्तान के ताकत पे मराकज पर पहुंच सके। बलोच माओं की फरियादें अर्श को हिला रही हैं, लेकिन मुक्तदिर कुव्वतें सुनने से कासिर हैं। 2009 में जबरी गुमशुदा अफराद के खानदान ने इस उम्मीद पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की बुनियाद रखी कि जिसमें हम इज्तिमाई जद्दोजहद के जरिए अपने प्यारों की बाजियाबी की जंग लड़ सकें। उस दिन कोयटा में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाजी कैंप का आगाज हुआ, जो आज 5000 दिन के बाद भी जारी है। 2013 में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के लिए 2000 किलोमीटर पैदल लॉन्ग मार्च किया गया, जो कोयटा से कराची फिर कराची से इस्लामाबाद तक। लेकिन आज की तरह 2013 में भी हमारी फरियाद सुनने के बजाय हमारे एहतजाज को ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की गई और जबरी गुमशुदा अफराद के खानदानों की आवाज दबाने के लिए प्रेस क्लबों पर ताले लगाए गए। इन 14 सालों में कराची और कोयटा प्रेस क्लब पर एहतजाज, कोयटा रेड जोन, इस्लामाबाद डी चौक पर धरना और बलूचिस्तान के गोशे गोशे में हमने एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन मुक्तदर कुव्वतें आज भी हमारे प्यारों की बाजियाबी के बजाय हमारे एहतजाज को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जद्दोजहद के दौरानिया में बलूचिस्तान में जबर का तसलसल जारी रहा। जबरी गुमशुदगियां मुसलसल हो रही हैं। सियासी तहरीक से वाबस्ता अफराद के खानदान को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जा रहा है और पहले तो सिर्फ बलोच मर्दों को जबरी गुमशुदा किया जाता था, अब तो बलोच औरतें भी जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बन रही हैं। लेकिन जो औरतें जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के इस तहरीक में शामिल हैं, उन्हें हरासा करना, उन्हें डराने और धमकाने का अमल भी जारी है। इन 14 सालों की जद्दोजहद में हमने सैकड़ों खानदान शामिल रहे हैं जिनके प्यारों की बाजियाबी मसखशुदा लाशों और इज्तिमाई कब्रों की सूरत में मिली है। हाजी राजिक की लाश
जिसे उसकी बहन ने उनके पाँव के जरिए से शनाख्त किया। संगत सना की लाश जिसे 28 गोलियां मार दी गई थी। लाशों पर तेज आले से नारे लिखे गए हैं। इन पर इतनी तशद्दुद की गई कि जिस्म के सारी हड्डियां टूट चुके थे। उनकी जिस्मों पर मशीनों से ड्रिल किया गया था। तूतक की इज्तिमाई कब्रें और दश्त के बेनाम कब्रिस्तान जिनमें वो जबरी गुमशुदा अफराद दफन हैं, जिनकी शनाख्त आज तक नहीं मुमकिन हो पाई। बलूचिस्तान में बलोच खवातीन इज्तिमाई सजा का सबसे बड़ा निशाना है। घरों में छापे, घर जलाना, घरों के वाहिद कफील का उठाना और अपने जमीन पर मुआजरत की जिंदगी गुजारना। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वही खवातीन हैं। जंगज़दा बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों से मुतासरा सैकड़ों खवातीन ऐसे ही जिन्हें मालूम नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मार दिए गए हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि उनके वालिद अब भी जबरी गुमशुदा हैं या किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिए गए हैं। ऐसे कई मिसालें हैं। ज़हरी से ताल्लुक रखने वाले ज़नीरा कय्यूम 12 साल की उम्र में अपने बाबा की वापसी के ख्वाब सजा के बैठी थी और उसे मालूम हुआ कि 2 साल पहले उसके वालिद को मारकर दश्त के लावारिस कब्रिस्तान में दफन किया गया है। मुकद्दस एक 7 साला बच्ची जो रोज मामा कदीर के कैंप में आकर अपने गुमशुदा वालिद की तस्वीर उठाती थी, बाबा की बाजियाबी के लिए एक फौजी मेजर ने 20 लाख का मुतालबा किया। इंतहाई गरीब घराने से होने के बावजूद भी उधार लेकर अपने जमीनें, अपने जायदाद बेचकर उस मेजर को इन्होंने 20 लाख दिया और बाद में उसी मुकद्दस की वालिद जमीन के अंदर से उसकी गली सड़ी हड्डियां और लाश निकली। हमने ऐसे घर भी देखे हैं जहां मसख शुदा लाश पर कोई मुशाबहती निशान देखकर माँ बाप अपना बेटा समझकर अपने लख्त जगर को दफन करते हैं। उनकी खैरातें और फातिहा भी की जाती हैं और फिर बाद में उनका बेटा जिंदा वापस आता है। अलमिया देखें कि हमारे पास एक बुनियादी डीएनए टेस्ट भी मौजूद नहीं है जहां पर हम अपने लोगों की शिनाख्त कर सकें। हमें जब हमारे लोगों की लाशें ढांचों की सूरत में मिलते हैं तो हमारे लोग उनको कोई दांतों की हड्डियों से देख के पहचानने की कोशिश करता है, तो कोई उनको उनके हाथ पांव के निशानों से देखकर पहचानने की कोशिश करती है। अलमिया देखें कि हम कितने बदकिस्मत हैं। हम कितने बदकिस्मत हैं कि जब हमारे बच्चों की, भाइयों की लाशें हमें मौसूल होती हैं तो हम उन माँओं और बहनों को मुबारकबाद देते हैं।